Manoranjan Sahu sir, our distinguished guest, students, and all the social media live viewers. I welcome you all in this 81st session of weekly webinar series Gyan Ganga, a knowledge voyage, with a sincere gratitude to our respected dignitaries and our mentors for their valuable encouragement, motivation to bring best of Ayurveda through this virtual platform. We shall start the session. Now, today, as a guest speaker, we are blessed to have with us one such great personality, respected Professor Dr. Manoranjan Sahu sir, who is former Dean of Faculty of Ayurveda, BHU, Varanasi, founder director of All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and also serving as RAV Guru from Varanasi. Today, sir is going to share a very informative session on a topic, principle and practice of wound management in Ayurveda. And there will be a question and answer session to resolve the queries of participants. And due to some parallel urgent meetings, director sir won't be able to join us today. So we may start with the brief introduction of today's respected guest speaker, Professor Manoranjan Sahu sir. Sir is presently serving as esteemed CRAV Guru. He had been former Dean of Faculty of Ayurveda, BHU Varanasi, founder director of All India Institute of Ayurveda, New Delhi. He has graduated from JB Roy State Ayurveda College, Kolkata, and formerly sir has served as professor in Shalya Tantra department as well, and also as the professor in charge of Ayurvedic Wing SS Hospital, BHU Varanasi. He served as founder director of AYA New Delhi. He has also served as Dean Faculty of Ayurveda. Sir possesses 34 years of teaching and research experience. He had published 32 research papers in various national and international journals and contributed 3 chapters in different textbooks. He has authored a book named Manual on Fistula in Ano and Shar Sutra Therapy. He has successfully completed 6 research projects and obtained 2 patents as well. He has established a national facility for treatment of fistula in Ano and as a program coordinator at Faculty of Ayurveda IMS BHU Varanasi. He had been felicitated by Department of Ayush Ministry of Health and Family Welfare for his contribution in development of Ayurveda. He has received various prestigious awards like Vaidya Sundarlal Joshi Memorial Award, IASTAM Shri Haribhau Paranjape Award for Excellence in Shalya and Shalakya. Sir has contributed in development of innovative techniques, IFTAK in management of fistula in Ano, biodegradable dermal patch using Ayurvedic drug for wound healing, and he is a member of steering committee of Ayush Scientific Advisory Board of CCRS and coordinator. Now I would like to request Dr. Manoranjan Sahu sir to please continue with the session with a request to participant to please keep their mic and camera off. Thank you sir and welcome. Thank you Poonamji for your introduction. It's really a great time for me to talk to you once again during this COVID period, and I must congratulate this bodies, the RAV, who is continuously working for providing knowledge to the students and also to the other all the gurus and other people during this COVID period. In true sense, when we are not able to have a face-to-face teaching and academic programs during last almost nearly 2 years of time. At the outset, to say I pay my respect to Padma Shri Padma Bhushan Vaidya Devendra Trigunaji, Dr. Manoj Nasri ji, and Dr. Anupam. Those who are doing very excellent job, say, doing this kind of a program, and hearty congratulations and thanks from my own side. Well, let's say today we have started a program. What we today I have given a task to talk, that is wound management in Ayurveda, its principle and practice. As a matter of fact, you see that we all know that, you see, I like to share my presentation. I don't know whether I'm able to share it or not, but let me see it, you see. No, I'm sharing my slides, you see, so that. Okay, okay, sir. अच्छा रहे सर अगर हिंदी में थोड़ा बोले तो थोड़ा अच्छा हम लोग और हिंदी में ही बोलेंगे, पूरा वार्ता आज हिंदी में ही होने वाला है।
आप निश्चिंत रहिए। सर विजिबल है आपका पीपीटी, प्लीज ओके, थैंक यू पूनम। देखिए, आज एक ऐसा विशेष विषय पर हम आलोचना करने जा रहे हैं, या हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें शायद ही हम ऐसा कोई संसार में है जो कि इस विपदा से या इस प्रॉब्लम से हम जूझे नहीं हैं। वुंड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति से हम इसके सामना किए हैं और हम इससे भुक्तभोगी हैं। इसकी सही आंकड़ा प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। हम आएंगे धीरे धीरे कि क्यों ऐसा है। हम जन्म के पहला जो हमारी जो शुरुआत हुई है वो छेदन शब्द से शुरू हुई है, नाड़ी छेदन से। वहां से हम अलग हुए हैं सभी लोग। अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के बाद ही हम अलग हुए हैं। तो द वेरी फर्स्ट ट्रॉमा वी हैव रिसीव्ड यू सी आफ्टर सिंस बर्थ। तो इसलिए इस जो व्रण या आयुर्वेद में जिसको हम बोलते हैं व्रण बोलते हैं, या वुंड मैनेजमेंट्स के बारे में आयुर्वेद से पहले से ही जो है वैदिक पीरियड से जो है काफी जो है डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल है। आयुर्वेद के भी बहुत सारे समस्त पुस्तकों में भी जो है काफी इसकी वर्णन मिलती है, और उसकी लक्षण चिकित्सा के बारे में हम धीरे धीरे आज पूरे विषय पर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। Various types of wounds and their management has been described, which is fundamental importance. अगर शल्य शब्द आता है तो उसके व्रण उसमें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप सबको जानकर, आप सभी लोग जानते हैं इस बात पर कि सुश्रुत संहिता में आधा से जो कंटेंट है संहिता, उसके आधा से ज्यादा जो है सुश्रुत संहिता में व्रण के ऊपर ही लिखी हुई है। इस विषय पर आप इससे हम उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, उसकी व्यापकता को हम समझ सकते हैं। तो सामान्य जो है इसकी गंभीरता को समझने के लिए एक सामान्य परिस्थिति को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रॉनिक अल्सर, तो हमारे कंट्री में आज तक कोई बहुत जो सर्वे या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो माइक है काइंडली ऑफ रखें ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अदरवाइज डिस्टर्ब होने लगती है। आई रिक्वेस्ट द लिसनर्स एंड व्यूअर्स काइंडली स्विच ऑफ योर माइक, थैंक यू। क्रॉनिक अल्सरेशन जिसके बारे में हम आज ज्यादातर चर्चाएं इसके ऊपर करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि जो सिस्टमेटिक स्टडी स्पेशली इन रिलेशन टू एपिडेमियोलॉजी मतलब कि इंसिडेंट्स क्या है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एवरीबॉडी प्लीज स्विच ऑफ देयर माइक्स, इट्स डिस्टर्बिंग। थैंक यू पूनम। जो क्रॉनिक अल्सरेशंस, जैसा कि मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था, व्हाट आई वाज टॉकिंग दैट, कि हमारे कंट्री में जो क्रॉनिक वुंड है इसका कोई एपिडेमियोलॉजी, करेक्ट एपिडेमियोलॉजी हमारे पास नहीं है। फिर भी एक कुछ समय पहले मेरे ही अपने ही इंस्टीट्यूशन में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ वुंड मैनेजमेंट है, उसके प्रेसिडेंट प्रोफेसर वी के शुक्ला, एक हम लोगों ने सर्वे किया था जिसमें करीब 4% ऑफ द पॉपुलेशन वो वुंड्स में सफर करते हैं। और ये आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हमारे 130 करोड़ आबादी है, उनमें 4% अगर लोग एडल्ट पॉपुलेशन में अगर घाव में सफर करता है तो उसकी आप क्वांटम को आप अंदाज लगाइए। एक 1920 में जो है 1920 में एक सर्वे, एक जो स्टैटिस्टिक्स जो अवेलेबल है, जो कि पेशेंट ने, लोगों ने जो मेडिक्लेम से, इंश्योरेंस के माध्यम से वुंड मैनेजमेंट के लिए यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो पैसा लोगों ने क्लेम किए हैं, उसकी अमाउंट को अगर हम देखें, ये बहुत ज्यादा है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो सालाना बजट होती है 19-20 के जो बजट है,
ये आप देख सकते हैं कि 19-20 की बजट के से भी ज्यादा अमाउंट जो है वो लोगों ने क्लेम किया है केवल मेडिक्लेम से. दैट इज वन ऑफ इन वन कंट्री. सो लुक एट दैट. व्हाट आई वांटेड टू से दैट द अमाउंट ऑफ मनी एंड द ह्यूमन आदमी उसमें इन्वॉल्व है और उसमें सफर करता है. तो अगर अपने कंट्री की अगर हम बात करते हैं कि करीब करीब अपने जो इस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन अगर सफर करता है कि 2.5 करोड़ के आसपास जो है इंडियन पॉपुलेशन घाव में सफर करता है. अगर 1 रुपये में खर्चा होता है तो ना 100 रुपये में खर्च होता है तो 2500 करोड़ के आसपास जो है एनुअल एक्सपेंसेस होती है इन मरीजों को ट्रीटमेंट के लिए, जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के बारे में हम बात करते हैं. तो ये अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है. दूसरा एक मजेदार बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं. जो वुंड केयर मार्केट है जी, इसमें औषधि हैं, उनमें जो ड्रग्स जिसकी बात करते हैं, इसकी आप मार्केट साइज को देखिए. 15 से 22 बिलियन डॉलर है ये. और हमारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एज ए आयुर्वेद ऑल्सो we can immensely contribute. We can also share this wound care market, you see, as a partner. You see. That what is my issue presentation is in this care, in this presentation, today's presentation. Sushrut, हमने जैसे पहले बताया कि half of his treatise has described in different types of wound and its management. उन्होंने घाव की जो है he has managed, he has described his own classification on the basis of etiology, clinical presentation, prognosis and stage of healing. तो उन्होंने own define किया है कि it's a very simple definition and it's probably one of the most, you see, important definition जो आज भी जो definition available है उससे ये कहीं differ नहीं करता है. जो 2,500 साल पहले सुश्रुत ने लिखा था, wound is a phenomenon of tissue destruction and after healing it leaves behind a scar which remains for the whole life. Basically, wound is a phenomenon of tissue destruction. Means there is a gap, there is a breach of our skin or in the mucous membrane, and it is because of due to trauma. That was Sushrut. That was normally what we know, that a trauma which caused a break in the tissue, in the skin and in the mucous membrane, we call wound. And what Sushrut said, that wound is a vrana, gatra vichurnana, damage the body component, body tissue, and it leaves a scar, you see, Pranayati. It leaves a scar, you see, which remains throughout the life. You see. So look at, see, the definition what he has said is a very correct, you see, and which still exists in the same form what we see today. How we have look at in the whole things, you see, like you can see that the wound, or say the vrana, is a much bigger term than wound. Sushrut has incorporated both, you see, he has described that wound has two types. One is a nijovrana, which means that the wound start this breakup or damage of tissue because of due to some internal abnormalities, due to some disease inside the body, which cause a discontinuity or break of skin. Whereas then another group where it is because of due to a injury, which cause accident, agantuj, or accidental injuries. As we all know that there are a lot of reasons of accidental injuries, like you see, it may be a simple physical trauma, गिर जाना, चोट लगना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होना, बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिससे हम आग से जल जाना, एसिड से जल जाना, इलेक्ट्रिक बर्न्स होना. There are so many things, you see, which can cause an accidental injuries. So these all cause a damage of tissue and discontinuity of the skin and mucous membrane, that we call agantuj vrana. And then the other reason of, as we have already told you, that it is because of some disease which cause, I'm coming gradually, you see. Therefore, if you see
in modern context, you see, if you look, you see the Brana itself, Brana means that there is a lack of the tissue has damage. It may be because of due to trauma or it may be because of some disease. This includes two things. This niche Brana is ulceration. Ulcerations means where the disease has started because of some disease, some pathology in the body. Whereas this Agantuja Brana, it is because of due to trauma. So this is Agantuja Brana is a wound and niche Brana is an ulcer. So these together has come to a single word, we call it as a Brana in Ayurveda. Most interesting component in these two terms, both niche and agantus, that in both the situation, there is a discontinuity of skin or mucous membrane. The phenomenon remains same, you see. Therefore, the definition given in Sushrut is more comprehensive, which includes both wound and ulceration. In period of time, you see, if you look, the wound bed converted into an ulcer. I am coming gradually. Now, Sushrut has, as you could see that he has defined, you see this Nija Brana and Agantuja Brana. This accidental injuries, as we call it, is because of due to some Sadhya Brana. Sadhya Brana, those who are, I mean, those who have students of surgery or Shalya Tantra, they have quite, you see, clearly could understood that the traumatic injury and accidental injuries, traumatic injury are one of the component of accidental injuries. Traumatic injuries, they are physical injuries, what we call chinna, vinna, chata, pichit, with the grist. They are different kind of traumatic injuries. चोट लगने की वजह से इस तरह से कई तरह के घाव बनते हैं. इसके अतिरिक्त भी घाव बन सकता है, जैसे केमिकल की वजह से, जैसे अल्कली है, क्षार है, इससे हो सकता है. किसी एनिमल के काटने से, जैसे सर्प दंशन से भी हो सकती है. थर्मल इंजुरी, जैसे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, इससे भी हो सकता है. इलेक्ट्रिकल थंडरस्ट्रोक. सुश्रुत के जमाने में आज के जो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, वो सिचुएशन नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाज नोन इन द फॉर्म ऑफ ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ ड्यू टू थंडरस्ट्रोक. तो ये सब रीजंस होते थे उस जमाने में, और आज भी इससे कोई परिवर्तन नहीं है कि घाव कैसे बनता है, जो इसको हम वुंड बोलते हैं, एक्सीडेंटल इंजुरीज बोलते हैं. इनमें से क्या है कि जो केमिकल इंजुरीज, बर्न इंजुरीज, थर्मल इंजुरीज, मतलब कि अग्निदग्ध और क्षार दग्ध, ये एक अलग चैप्टर में सुश्रुत ने डिस्क्राइब किए हैं, जो इस डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड है. ऑन द कॉन्ट्ररी, there are certain diseases which results into ulcerations or break of the tissue, जिसमें घाव बनते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इन्फेक्शन के वजह से हो सकती है. कई तरह इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिजीज. कुछ डिजीज की वजह से भी शरीर में घाव बनते हैं. डायबिटीज इज वन सच इश्यू which is very common. We will be coming about this diabetic ulcers. Then malignant ulcer, जो कैंसर की वजह से स्किन में घाव हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन में घाव हो जाना, बहुत सारे बॉडी सरफेसेस में घाव बन जाते हैं. So these are different 16 subtypes Sushrut has described as per vitiation of dosas, जैसे वातज है, पित्तज है, त्रिदोषज and दंदज. So like this, so Sushrut has described different types of, you see, infective origin, niche dosajanya brana. So these are, we are going to describe their concept and their management, how. So now by this time we have able to know it that brana is a term which includes both ulcerations and traumatic injuries. Now this will give you a more clear picture about the different kinds of, you see, wounds which causes damage. Chin, where there is a part of the body has excised from the body. You see, we excise a part of the body, like a chopping of a finger from here, or it is nearly chopped out. Completely chop out तो नहीं हुआ है, लेकिन करीब करीब chopped हो गया है. So that we call chinna brana here in Ayurveda. Vinna brana.
there are a lot of confusions about many people. There are a lot of people that describe Windbrands a incised wound. True, but it is incomplete. Basically a Windbrand is a incised or penetrating wound which must injure viscera. Viscera मतलब किसी अंदर की जो है आशय को जो है जब तक इंजुरी नहीं होता है, we cannot call it as a Windbrand. That is the only difference between Wind and Vidh. In one situation, the organs, the viscera get injured. In another situation, it is associated with without any injury of viscera. So both, you see, because both have a different management, you see. That is why Sushruta has differentiated a Windbrand, a penetrating or incised wound which cause injury associated with visceral injury, and on the other, in Windbrand, where it is penetrating injuries which cause without any visceral injuries. Viscera injury होने का मतलब कि आपको विसरा का भी ट्रीटमेंट करना है, इसलिए it has given a special category. Now let us the other types of wounds. What you could see normally is a grist. The meaning itself shows the word shows घिस जाना, रगड़ जाना, जिसको हम सामान्य रूप से बोलते हैं. What जैसे अगर आप दीवार के साथ रगड़ जाते हैं तो ऊपर का चमड़ा सतह जो है छिल जाता है. What you call a grist burn. It may be a superficial abrasion, maybe a deep abrasion, but it is limited to the skin normally, you see. Then pitchit. Pitchit is a more kind of a पिचक जाना, जिसको हम सामान्य बात में करते हैं. किसी हेवी ऑब्जेक्ट दीवार गिर गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, जैसे किसी के ऊपर से रोलर चल गया है, तो पूरे अस्थि मज्जा मांस सब इसके एकदम पिचक जाना जिसको बोलते हैं. So it's a crush wound, you see. So it's a lacerated and crush wound where there is a bone marrows, they come out, you see, and there are a lot of tissue damage, what we call a pitchit burn. Then the lacerated wound, इसमें क्षत विक्षत हो जाना, मतलब कि जो टिश्यू है वो बिल्कुल मल्टीपल तरीके से काफी हद तक डैमेज हो जाना. But this severity of this damage is a less than pitchit, you see. So that what are the different types of wounds has been described by Sushruta. So, and he has described the management of every types of wound, what we call, these are acute wound, you see. तुरंत होता है. तो अगर हम देखें एक सामान्य रूप से कि जो व्रण होते हैं, एक जो उसकी दो कंपोनेंट है, एक निज व्रण है, नहीं सॉरी, एक निज व्रण है और एक आगंतुज व्रण है. सो आगंतुज व्रण में इसमें से एक्सीडेंटल इंजुरीज है, और ये सद्य व्रण जो हम 6 प्रकार को हमने बताया है, ये 6 प्रकार को है. छेदन, छिन्न, भिन्न, पिच्छित, ग्रिस्ट, ये 6 प्रकार की व्रण है. और इसमें क्या होता है, जो आगंतुज व्रण है, ये 6 प्रकार के साथ साथ इसमें दग्ध है, और एक्सीडेंटल इंजुरी के साथ बर्न्स है, और केमिकल इंजुरीज है, और पॉइजनस बाइट्स एंड स्ट्रिंग्स है, ये भी इसके साथ जुड़ा रहता है. तो इट्स ए बिगर वन. सो बोथ आर सेम. द आगंतुज व्रण इज ए बिट बिगर, और सद्य व्रण जो है ए बिट ऑफ ए स्मॉलर, यू सी, एरिया. सो विद दीज यू सी there is a failure of response of this. I'll just wait for a second. Let me continue. So therefore, the Sushruta has described the management of all different types of acute wounds, what I have just shown you in my earlier slide. Probably my computer has some problems. Let me see it. Okay. So now what you could see over here, that these are the different types of wounds. As I told you, then acute wound. Now let us move to the interrelation, you see. In this slide, I'd like to show you that a accidental normally एक जो सद्य व्रण होता है, जितने तरह के हम व्रण अभी दिखाया,
सामान्य रूप से अगर हम उसकी बेहतरीन तरीके से अगर इलाज करें तो ये करीब करीब 7 दिन में ये भर जाते हैं। उतने जो बहुत ही सीवियर क्रश वुंड है उन चीजों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो सामान्य घाव है अगर उसकी सीवन कर्म है, संधान कर्म करें तो ज्यादातर घाव जो है एक कम समय में, it 7 days is not the right, not very right you say exactly term days, but normally it heals within a week time. अगर ये 7 दिन के अंदर नहीं भरता है तो या ये अगर और समय लगता है तो दोषज व्रण हो जाता है, उसमें दोष उसके अंदर समाहित हो जाता है, वो वातज, पित्तज, कफज, दंदज या त्रिदोषज व्रण में कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है, ये अगर ये दोषज वात दुष्ट, पित्त दुष्ट, कफ दुष्ट अगर व्रण होगा तो हमारा कोशिश क्या रहेगा कि हम उसको शुद्ध व्रण की तरफ ले जाएं। तो कई बार अगर ट्रीटमेंट करने अगर डिले होती है, हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं या गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ये नॉन हीलिंग वुंड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में दुष्ट व्रण बोलते हैं। दुष्ट मतलब सीधे सीधे अगर हम इसकी भाषा को अगर देखें, दुष्ट मीन्स बैड, ए बैड वुंड। शुद्ध मीन्स, शुद्ध मतलब ए गुड वुंड। सो द होल मैनेजमेंट की जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, चाहे दुष्ट, चाहे आगंतुज व्रण हो या सद्य व्रण हो, ये बहुत जल्दी अगर ट्रीटमेंट करने के बाद ये भर जाता है। अगर नहीं भरता है 7 दिन के बाद तक उसमें दोष समाहित हो जाती है, और ये दोष होने की वजह से ये हमारा जो जो एक्टिविटी रहेगा हम उसको शुद्ध व्रण में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये दुष्ट व्रण में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये शुद्ध व्रण हो जाता है तो व्रण सामान्य रूप से धीरे धीरे भरने लगता है। सेम उसी तरह से जो निज व्रण है वो बेसिकली दोषज व्रण है, ये दोषज व्रण है। तो दोष, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि दोषज व्रण को हम शुद्ध व्रण में कन्वर्ट करें, और इस कन्वर्जन के अगर नहीं कर पाते हैं तो ये घाव भरने में बहुत मुश्किल होता है, ये दुष्ट व्रण में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, एक एक्सीडेंटल इंजुरीज जो है होने के बाद भी ये दोषज व्रण में कन्वर्ट हो सकता है। निज व्रण स्वतः दोषज व्रण है और टोटल ऑब्जेक्टिव है हम इसको शुद्ध व्रण में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट, तो जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, ये दोषज व्रण है, दुष्ट व्रण है, ये सब व्रण की जो है ट्रीटमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध व्रण है, रूढ़ व्रण है और सम्यक रूढ़ व्रण। What it means that the wound has healed properly. The wound, it's a Rudevan bronze, it is a good wound which is healing. In due course of time, it will heal. The Shuddha Bran means it's a clean wound. Dushta Bran is a bad wound. Dosaja Bran is a vitiated wound. And if we take proper care, it will heal. So these are some of the classification Susruth has given for treatment. What you see a Dushta Bran here. और मैं आपको इसलिए इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहता हूं कि 20 से 30% ऑफ डायबिटिक पेशेंट विल डेवलप लाइक दिस। और आपको जानकर, अब हम सभी लोग जानते हैं, बाय 2030 इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। मतलब विश्व के सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग मेरे ही देश में रहने वाले हैं, और ऐसे डायबिटिक मरीजों की करीब 20 से 30% लोगों की पैर की हालत ऐसे होने वाला है। That is probably which is alarming to all of us, you see. And as a Ayurvedic practitioner, we have a lot of role to play. हम कर सकते हैं, बाखूबी कर सकते हैं, और हम करते आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लाइफ में आज तक मैंने कभी भी किसी पेशेंट की पैर का एम्पुटेशन नहीं किया है, और हम लोगों ने हजारों मरीजों की जो है पैर को, घाव को, जो डायबिटिक वुंड्स है, बिल्कुल धैर्य के साथ इलाज करके हम उसको ठीक किए हुए हैं। तो अगर क्लासिफिक आयुर्वेद के डिस्क्रिप्शंस में जाए तो एक बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। हम किसको खराब व्रण बोलेंगे? सभी व्रण जो घाव हो गया है वो खराब व्रण पक गया तो खराब नहीं होते हैं। सो दैट व्हाट इज ए वेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया Susruth has described in its description in Susruth Samhita Sutrasthan 22 chapter 7. So that what you could
remember these each and every word of this Dushta Brahman. So I'm going to, these are the words what you can look over here. But I always believe that you must look at the things what it has been written in the words you see. वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इन एक एक शब्द को समझे और उसकी तरह हम जो घाव जो ऊंस हैं उसको समझे, तब हम शायद इसके इलाज करने में कामयाब रहेंगे। और हमें समझना पड़ेगा कि हम कहां तक इन चीजों का इलाज कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। सो व्हाट वी विल कम अबाउट पुति मांस शिरा स्नायु युक्त मींस द वुंड is foul smell and there are open, you see. They are perforated. There are lot of gangrenous tissues, you see. The other is the wound which discharges lot of pus, foul smelling pus and blood, you see. So ati vibrit, it's a very large wound, you see, very wide wound. So they are non-healing wound and takes a lot of time. Excessively depressed कब होगा? जब काफी जो है घाव उसमें टिश्यू लॉस हो जाएगा. Large infected wounds. So you could see. Then another important thing that there are sinuses. You could see that ये घाव देखने में यही दिखता है छोटा सा, but it extends to the deeper structure. मतलब क्या होता है कि it involves the tendons and joint space. So you could treat this patient until unless you treat the root of this disease, you see. तो केवल इस जगह को ट्रीट करने से घाव नहीं सी तो धीरे धीरे पैर खराब हो जाए. So you need to learn, you see, as a student, you see, as a beginners, that the extent of the wound, how it involves, you see. There are multiple, you see, tracts and pockets. Tracts. This patient is now under treatment with us, so you could see that there are lot of pockets. You see, these pockets harbor infection, and this patient is being under treatment at Delhi for more than 12 years, you see. Now he has come for treatment to us and we are treating this patient right now. So look at, you see, so these are the situations which help us. Now look at a wound, you see. This wound has a very extensive wound. The same type of wound you could see under the chest and on the chest wall and on the under the lateral aspect of the breast also. Basically, this is a tubercular abscess which burst open, some memory abscess which burst open on the lateral wall of the chest, which extensively involved the chest wall also. This patient, you could see there are abscess in the abdominal wall which we incise and open the pus because it caused compression. It is because of due to a chest infection of the tubercular, which is tubercular in nature, which separates and it extended to the chest wall and to some memory, inframemory abscess. तो अगर हम इसकी एक्सटेंशन और इसके रीजन्स को नहीं जानेंगे तो हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते. The wound sinuses which are quite long in nature, you see. So viral, very a crush injury, what you could see over here, they are quite difficult to handle. So look at, these are some of the Brunners where Susut has described that they are difficult to handle. They are bad wounds. Wound exposed with tendons. काफी tissue damage हो गया है. Tendons and muscles, they are exposed. You could see that burned patients where there is a lot of tissue damage. So all these patients, they need the wounds which discharges stool and feces. The patient is passing urine through the sinuses. The patient which is discharging fecal matter through the wound, you see. They are special wounds. They are bad wounds. They need a very special care. And we need to answer these until unless we learn these things, we cannot treat them, you see. Therefore, they require a very special attention for treatment. Therefore, Susut said that you need to take very special care for these patients, you see, for treatment of these patients. You could see that there are wounds there are fleshy masses. मांसा अर्बुद के साथ है ये. So look at, you see, these are ulcers, but they need a very special treatment. They are malignant ulcer. You cannot misdiagnose them and you cannot treat them, you see, until unless they need a very special kind of a treatment. So they are all bad wounds. They don't heal with difficulty. These are venous ulcer again.
there are multiple, you could see that there is prominent veins all around this gluteal area, and they cause a very bad and dirty wound. They need a special treatment. You could see a wound where there is a perforated abdomen and then there is a omentum, has putrefied omentum. So they need a very special treatment and care. They are bad wounds. You could see a very difficult wound, you see, where there is a callus formation. The margins are hard, ati kathor. So look at this. These are the observations Sushruta has made, that if you get this kind of a, so this, all wounds what we see or ulcer what we see are not like this. They are not, no, so they can, if you treat them properly, they will be healed. But these needs a very special attention. So you could see that here there are ulceration and that is involved with maggots. कीड़े पड़ गए हैं घाव में. तो हम कीड़े पड़ गए घाव में मतलब कि नेग्लेक्टेड वुंड, यू सी. तो इस तरह का वुंड भी बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करने में. लेकिन मैं इस पिक्चर को इसलिए रखा हूं, इसमें एक सुश्रुत की प्रिंसिपल्स छुपी हुई है, जिसमें वुंड मैनेजमेंट में हम आज पूरे विश्व उस प्रिंसिपल्स का हम ऑप्ट करते हैं, उसको हम अपनाए हुए हैं वुंड मैनेजमेंट के लिए. देखिए कई बार हम जब घाव को लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो उसमें कीड़े, मक्खी के वजह से कीड़े पड़ जाते हैं. सुश्रुत ने भी ऐसा ही एक डिस्क्रिप्शन जो है अर्बुद के चिकित्सा में किया है कि अर्बुद जब किसी कठिन स्थान पर हो जिसको ट्रीटमेंट करना कठिन होता है, एक्सरसाइज करना, छिद्या भगंदरा, और भगंदर के भी छिद्र रोग में आता है और अर्बुद भी छिद्र रोग में आता है, मतलब उसको काट के शरीर से निकाल देना है. लेकिन जब किसी मर्म में होता है, ऐसे कठिन जगह पर होता है जिसको निकालना कठिन है, या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज ट्यूमर है, हम निकाल नहीं पाते हैं, ऐसा समस्या कई बार होता है. व्हाट ही हैज एडवोकेटेड, उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर आप जो है तिल है, मधु, गुड़ है, ऐसे चीजें मिलाइए, ताकि मिला के रखिए, उड़द की दाल है, ताकि उसमें मक्खी आए और उसमें मक्खी आने के बाद उसमें अंडे दे और उसके बाद धीरे धीरे लार्वा पैदा हो. And these larvae, they gradually eat the entire tumors. They can help in debulking. The same philosophy is being now used for the treatment of wound. अब देखिए ये कुछ समय के बाद हम लोगों ने इसको निकाल दिए, डेड टिश्यू निकाल गया अपने आप, और ये ट्रीटमेंट हो गया है इसका पूरा घाव का. हमने उसमें कुछ किया नहीं है. नेचर, मतलब कि मक्खियों ने जो अंडा दिए थे, वो लार्वा उसको खाने के बाद इसकी पूरी घाव ठीक हो गई. So look at, you see, that what the Sushruta has described treatment modalities for the treatment, कृमि से भक्षण करवाना. और ये आज जो है ग्लोबल ट्रीटमेंट मोडालिटीज है वुंड हीलिंग के लिए. नाउ स्पेशल काइंड ऑफ मेगट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड, वेयर मेगट्स you could buy it from it, and this treatment is approved by the US FDA, and it is now available globally for treatment of infected wound. इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है. लार्वा जो है अवेलेबल है, इन लार्वास को घाव में छोड़ देना है, तो लार्वा धीरे धीरे बड़े होते हैं, ये डेड टिश्यू को खा जाता है और ये वुंड को क्लीन कर देता है, और उसके बाद घाव धीरे धीरे भरने में मदद करता है. तो ये एक हमारी सुश्रुत की जो एक कॉन्सेप्ट था, जो आज काफी जो है विश्व में जो है इसके ऊपर चर्चा है. हालांकि इसकी ट्रीटमेंट की जो क्रेडिट है वो हम लोगों ने नहीं ले पाए हैं, किसी दूसरों ने लिया है, जिन्होंने इसको हमसे लेकर के किया है. तो व्रण चिकित्सा के लिए व्रण की परीक्षा होना भी बेहद जरूरी है. ज्यादातर समय हम जो वुंड की जो परीक्षाएं करते हैं, वो ज्यादातर समय हम उसकी जो अवेलेबल जो वुंड साइज, शेप, हम उसको देखते हैं. सुश्रुत ने भी ऐसे ही जो है, देखिए व्रण वस्तु, व्रण गंध, वर्ण, श्राव, वेदना, आकृति, तो ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं व्रण की चिकित्सा के लिए और उसके डायग्नोसिस के लिए. व्रण वस्तु, कुछ जगह पर घाव होने पर बहुत आसानी से घाव भर जाता है, कुछ जगह पर घाव होने पे बहुत कठिनाई से भरता है. गंध, see there are foul, the smell, it gives you a lot of things. Usually a clean wound जो घाव भरने वाला है उसमें कोई गंध नहीं होते हैं, या ऐसा कोई गंध नहीं होता है. बट देयर आर जो कि अरिष्ट की तरह होता है व्रण गंध, कई बार इतने फाउल, तो उससे आपको व्रण की
माइक्रोबियल स्टेटस को भी पता लग सकता है। वर्ण, आप एक दूर से देख करके व्रण की हम अंदाज लगा लेते हैं कि व्रण शुद्ध है कि नहीं है। आई एम कमिंग ग्रेजुअली। उसी तरह से उसकी श्राव से भी, वेदना से भी, आकृति से भी। सर्कुलर वुंड्स दे हील विद लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। पिन होल वुंड्स हैं। तो इस तरह से जो सुश्रुत के डिफरेंट जो डिस्क्रिप्शंस हैं, ये आज भी उतना ही समसामयिक है जितना उन्होंने किसी समय लिखी। तो आज भी मैं इन वस्तुओं, इस सुश्रुत के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको उतना ही आदर और सम्मान के साथ घाव की चिकित्सा में मैं उपयोग करता हूं, और ये बहुत ही कारगर है। मैनेजमेंट ऑफ वुंड्स हम आएंगे धीरे धीरे कि वुंड मैनेजमेंट बेसिकली एक डायनामिक प्रोसेस है। ज्यादातर समय मैं अपने जब ट्रीटमेंट के समय, जब रेजिडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में आते थे जो नए होते थे, उसको घाव ड्रेसिंग करने के लिए जब पहुंच जाता है तो वो अपना गॉज पीस और फॉर्सेप लेके घाव के ऊपर रगड़ना चालू करता है। एंड दैट्स प्रोबेबली अ कॉमन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम, यू सी। So whenever you found a chronic wound, usually people start rubbing, try to remove everything from the wound, and does not require, you see. Probably it is not an essential state, rather it damages the wound, you see. Basically, हम जब पेशेंट को देखते हैं, किसी पेशेंट में घाव देखते हैं, तो मरीज का घाव के ऊपर ही हमारे कुल ध्यान केंद्रित हो जाती है। हमारा ध्यान दो विशेष चीज के ऊपर आना चाहिए कि व्रण का चिकित्सा होना चाहिए, जो व्रणित का चिकित्सा होना चाहिए। मतलब जो पर्सन वुंडेड है, द पर्सन टू बी ट्रीटेड ऑन द इक्वली इंपॉर्टेंस टू बी गिवन, जो हम करीब करीब भूल जाते हैं। दूसरा, हमें यह समझना पड़ेगा कि वुंड हीलिंग, घाव भरने का जो प्रक्रिया है, एक स्टैटिक नहीं है, एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस मतलब अलग अलग समय पर उसकी जो इंटरनल चेंजेस होती है वो डिफरेंट होता है। जब चोट लगा उसके 2-4 घंटे के बाद कुछ समस्याएं अलग होती हैं, 2 दिन 3 के अंदर कुछ समस्याएं अलग होती है, हफ्ते में कुछ उसकी समस्याएं अलग होती है। उसके जो इंटरनल चेंजेस होता है, इसको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से उसकी दवाई होती है। ये चीज सुश्रुत में बहुत बाखूबी उल्लेख है। शायद हम इन चीजों को कभी समझ नहीं पाए थे। 2009 से पहले हम इन बातों को जब हाईलाइट हुआ है वुंड हीलिंग के लिए, तब इन चीजों के बारे में हम जानकारी हम लोगों को काफी लगा, और तब महसूस हुआ कि सुश्रुत संहिता में लिखी हुई चीजें कितनी कारगर है और कितनी साइंटिफिक है, जो आज हम बहुत समय के बाद इस चीजों को समझ पाए। क्योंकि बहुत अभी तक क्या होता था कि जब क्यों घाव हो गया तो उसमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक डाल करके हम उसकी पुताई करते हैं या उसके ऊपर बैंडेज कर देते हैं। ये आज भी बहुत कॉमन है। कोई भी आएगा तो उसमें बेटाडीन डाल करके, रुई रख करके, सफाई करके कोई ना कोई एंटीबायोटिक क्रीम डाल दीजिए। Probably one of the most mismanaging way of managing a wound, you see. So we need to understand it's a different step of wound healing, and we need a different kind of a drug. And what Susruth has described, you see, very clearly, I'm coming out, you see. The management of acute traumatic wound is a quite different, and a management of chronic wound is a quite different, you see. I'm coming one after one, you see. ये पहला का इस जो ये था स्लाइड था कि दे आर एक्यूट वुंड भी धीरे धीरे क्या होता है, जो चोट लगने के बाद अगर नहीं भरता है, कम से कम हम उसको, अगर 3 महीने के अंदर एक घाव नहीं भर जाता है तो हम उसको क्रॉनिक वुंड बताते हैं या नॉन हीलिंग वुंड बताते हैं। वो करीब करीब जो हमारे शरीर में 200 जो व्रण होते हैं उसके बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमेटिक वुंड है, हम इसमें चाहे वो ट्रॉमेटिक वुंड हो चाहे ये क्रॉनिक वुंड हो, दोनों में एक समानताएं हैं। एक जो है जनरल मैनेजमेंट, हम घाव के जो व्रणित को हम चिकित्सा करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ वुंडेड पर्सन, उसमें क्या देखते हैं कि उसके वाइटल, मरीज चोट लग गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हम घाव को देखें कि उस आदमी को जिंदा पहले रखें। तो स्वाभाविक बात है कि घाव को भी देखना है और ये भी देखना है कि वो मरीज जिंदा रहे, कहीं उसकी सांस तो नहीं अटकी हुई है, कहीं उसकी ब्लड प्रेशर तो नहीं खत्म हो गई है, कहीं वो शॉक में तो नहीं है, कोई उसकी फ्लूइड लॉस और ब्लड लॉस तो नहीं हो गया है। उसको मैनेज करना है और उसके साथ साथ घाव का भी मैनेज करना है। तो घाव में क्या देखते हैं हम, वुंड में क्या देखेंगे, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे,
फॉरेन बॉडी है तो उसको निकालेंगे, वुंड की सफाई करेंगे, क्लीनिंग ऑफ वुंड करेंगे और उसके बाद व्रण के सीवन कर्म करेंगे। उसके बाद डिफरेंट मेडिकेशंस देंगे। आयुर्वेद में जो है मधु और घृत की बहुत है प्रचलित है और बहुत ही कारगर है। व्रण प्रक्षालन के कई तरह का औषधि है, कषाय रस के औषधियां ज्यादातर प्रयुक्त होते हैं और व्रण के पेन निवारण के लिए ढेर सारे वातनाशक, पित्तनाशक और पेन किलर जो औषधियां हैं। Cannabis is one of the important drug which has been described in Ayurveda. Opium are some of the drugs. Now they are extensively used in pain management immediately, especially for major traumas. Now I'm not going on detail all these things, क्योंकि अगर ये सब बात करने जाएंगे तो समय इतने लगेंगे जो बहुत टाइम लगेंगे। तो एब्डोमिनल इंजुरीज के बारे में भी आप देख सकते हैं, उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में मिलते हैं, उसके मैनेजमेंट का तरीका है। तो केवल बाहरी घाव को नहीं देखना है, उसके अंदर की जो इंजुरीज है उसको भी ट्रीट करना है। उसी तरह से भिन्न नेत्र का भी अगर आप देखें तो ये डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। उनमें दो तरह का उन्होंने डिस्क्रिप्शन बोले हैं, एक में कि नेत्र भिन्न हो जाती है, एक में नेत्र भिन्न नहीं होते हैं। नेत्र जो है बिना भिन्न नेत्र भी जो है चक्षु के जो है नेत्र की जो है इंजुरी हो सकता है। लोग की आंख बाहर आ गया है लेकिन इसकी ट्रॉमेटिक कंडीशंस की वजह से ऑकुलर डैमेज नहीं हुआ है, इसमें ऑकुलर डैमेज हो गया है। तो दोनों में अंतर है। तो इस कंडीशंस को आप रिपोजिशंस के लिए सुश्रुत में जो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, रिपोजिशनिंग ऑफ आई बॉल, तो एक्यूट ट्रॉमा में आपको ये समझना पड़ेगा अगर हम इसमें कोई गलती करें तो पेशेंट का आई लॉस हो जाएगा। तो बिना समझे इस तरह का ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। We need to be very clearly, we need to observe that what kind of a patient we must treat and what should be referred to a referral place where adequate treatment can be given. लेकिन ये जो आगे बात कर रहे थे, ये सब acute traumatic injuries है। तो acute traumatic injuries में हमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रॉमा पेशेंट को भी देखना है और जो वुंड है उसको भी देखना है। वुंड में क्या देखना है कि क्लीन, हमारे पास ढेर सारे आयुर्वेद में कषाय द्रव्य हैं जिनमें पंचवल्कल है, त्रिफला है। सो विद दीज वी कैन क्लीन द वुंड एंड वी रिमूव द फॉरेन बॉडीज एंड वी नीड टू suture if it is required, and then we need to cover the wound by different kind of a bandaging, you see. On the contrary, if there is a severe injuries, major injuries, we need to identify what is injured and we need to treat accordingly. एक मोटा मोटी बात यह है, लेकिन हमारा मेजर फोकस आएगा एक क्रॉनिक वुंड्स के लिए, दुष्ट व्रण है जो बैड वुंड कहते हैं हम इसको। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बैड वुंड का? हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बैड वुंड के लिए? एक खराब जो घाव है उसको अच्छा घाव की तरफ ले जाना है। तो कैसे ले जाना है? तो उसके लिए एक सिस्टमिक जो वुंडेड पर्सन है, जो घाव जिसमें है उसको देखना पड़ेगा, उसकी लोकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये जो घाव है इस जगह का मैनेजमेंट करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस टिश्यू पर, जिस धातु पे ये व्रण हुआ है उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब जो धातु के ऊपर व्रण अधिष्ठान, जिसके ऊपर व्रण हुआ है उसको देखेंगे, जो व्रण को देखेंगे और व्रणित जो पर्सन हुआ है, इन तीनों चीज को देखना जरूरी है। सुश्रुत ने एक जो मोटा मोटी तौर पर 60 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने व्रण की चिकित्सा के दिया है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि 7 जो है टाइप्स पे उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। जो 60 को जो है 7 में ले आए हैं, सप्त उपक्रम हम बोलते हैं। We are going gradually with these issues. So what we need to convert that meticulous surgical debridement. ऐसा अगर घाव मिलते हैं जो क्रॉनिक वुंड है तो हम क्या करेंगे? मेटिकुलस सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल अगर इसलिए करना जरूरी है कि घाव की व्रण वस्तु जिसके ऊपर ये घाव हुआ है उसका अगर इन्फेक्शन करता क्या है, बेसिकली जो टिश्यू को है इसको डैमेज करता रहता है, जो माइक्रोब्स है उसको डैमेज करेगा। तो हमें अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, जो व्रण वस्तु जिसके ऊपर हमारा जो धातु है, इन धातुओं को बर्बाद करता रहेगा। अगर धातु क्षय लगातार होता जाएगा तो घाव कभी नहीं भरेगा।
तो इसलिए हमको उस पर कंट्रोल करनी है। मैनेजमेंट ऑफ दोषा, इस बात पर मैं पहले जब हम रेजिडेंट थे या जब हम उतने मैच्योर नहीं थे, हमें इसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, हम इसको समझते ही नहीं थे। व्रण चिकित्सा बहुत सुगम हो जाता है अगर इस व्रण की दोष को हम समझने की कोशिश करें और दोष के हिसाब से अगर हम जो औषधियां हैं आयुर्वेद में उसको अगर हम प्रयोग करें, ये बेहद सुखद रूप से व्रण की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ दोषा ये आयुर्वेद के खास पहलू है या आयुर्वेद की विशेषता है कि हम दोषों को चिकित्सा करें, वो हमें ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है। तो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आयुर्वेद ने बहुत स्ट्रेस अपन किए हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक स्टेट। आहार विहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम धीरे धीरे थोड़ी इसके ऊपर भी चर्चाएं करेंगे। एंड केयर ऑफ व्रण अधिष्ठान, मतलब जो धातु है जिसके ऊपर ये व्रण बनी हुई है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीजों को सामूहिक रूप से, ये व्रण चिकित्सा एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक को देख करके आप नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर चीज इसके ऊपर नहीं हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा समग्र रूप से, व्रण को देखना पड़ेगा, व्रण जो आदमी को भी देखना पड़ेगा, आदमी या जो पर्सन जिसके ऊपर घाव हुआ है उसको भी देखना पड़ेगा, व्रण को भी देखना है, उसकी न्यूट्रिशन को देखना है, उसकी लाइफस्टाइल को भी देखना है। तब जा करके अगर हम कोशिश करें तो हम धीरे धीरे इसको एक दुष्ट व्रण से शुद्ध व्रण की तरफ ला सकते हैं। सो दैट इज आवर गोल यू सी। तो आपको जानकर खुशी होगी कि कन्वर्जिंग फ्रॉम दुष्ट व्रण टू शुद्ध व्रण, ये जो प्रक्रिया है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शोधन कर्म, व्रण शोधन। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये दुष्ट व्रण को हम शोधित व्रण के शुद्ध व्रण की तरफ ले जाते हैं। व्हाट आयुर्वेद कॉल इज ए व्रण शोधन। एंड वंस द वुंड बिकम ए क्लीन वुंड, यू सी, अगर एक क्लीन वुंड हो गया, उसको अगर रोपण मतलब उसको हम भरेंगे, उसको घाव को भरने की कोशिश करेंगे, देन व्हाट वी कॉल इट इज ए व्रण रोपण। मीन्स व्हाट यू कुड सी देयर इज ए टू डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ वुंड हीलिंग। व्हाट यू कॉल ए कि व्रण शोधन करेंगे, शुद्ध करना है, खराब चीज को से बुरा चीज को खराब ठीक करना है, और दूसरा क्या करेंगे कि जब ठीक हो गया, द फोटोग्राफ इज मिसिंग हियर, अगर व्रण जब शुद्ध हो गया तो उसको जल्दी भरेंगे। एक मोटा मोटी बात है। ये जो टोटल प्रक्रिया है, हम 2007 के आसपास मॉडर्न मेडिसिन में हम इसको समझ पाए हैं। इसको हम कहते हैं कि वुंड बेड प्रिपरेशन। व्हाट वी कॉल इट इज ए वुंड बेड प्रिपरेशन। This we have come to know in 2007 only, not before it. तो ये प्रक्रिया लेकिन सुश्रुत में बहुत क्लासिकली, बहुत डिस्टिंक्टली डिफाइंड है। द ड्रग्स आर डिफरेंट इन फर्स्ट स्टेज, व्रण शोधन के लिए औषधियां अलग है, व्रण रोपण के लिए औषधियां अलग है। तो जो घाव भरने का काम करेगा वो जो है वो घाव को साफ करने के काम नहीं करेंगे। ज्यादातर क्षीरी वृक्ष की औषधियां होती हैं, ज्यादातर कषाय औषधियां होती हैं व्रण शोधन के लिए, और ज्यादातर मधुर द्रव्य होती हैं व्रण रोपण के लिए। व्रण रोपण की जो औषधियां होती हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट है, उसको स्टिमुलेट करता है। ये ज्यादातर औषधियां इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो सुश्रुत ने बहुत साल पहले एक डिस्टिंक्टली उन्होंने इस बात को लिखे थे। अगर जब घाव शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो इट इज सुश्रुता ऑब्जर्वेशन। देखिए क्या होगा, ये जो है तीनों दोषों से मुक्त रहेगा। इसमें सावोस्ट होगा, इसका मार्जिन ब्लूइश होगी। ब्लूइश मार्जिन इंडिकेट्स देयर इज ए प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। द ग्रैन्युलेशन टिश्यू विल बी क्लीन लाइक ए क्लीन टंग। ये रेड होता है क्लीन टंग की तरह, मतलब जीवा तल सदृश। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। आपको घाव को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको दूर से देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि घाव भरने वाला है कि नहीं है। घाव बड़ा हो मत घबराइए, लेकिन ये लक्षण से अगर हो तो आप जरूर अपने पास रखिए उसको ट्रीट करने के लिए। डोंट अफ्रेड ऑफ इट। लेकिन घाव अगर छोटा भी हो, इन लक्षणों से नहीं है, मतलब वो जो है दुष्ट व्रण है या दूषित व्रण है, उसका आप चिकित्सा, विशेष चिकित्सा चाहिए। ऐसे व्रण में व्रण रोपण करना है, ऐसे व्रण में व्रण शोधन नहीं करनी है। सो देयर आर डिफरेंट
एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन ज्यादातर समय हम जो सभी लोग ज्यादातर लोग घाव देखा चाहे शुद्ध हो चाहे दुष्ट हो उसमें हम बीटाडिन डाल देते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है। ये चीज बिल्कुल नहीं है। दैट rather cause more danger to the wound healing process. That's what I wanted to convey you. देखिए, व्रण चिकित्सा शुद्ध व्रण को दुष्ट व्रण को शुद्ध करने के लिए औषधि की केवल जरूरत है ऐसा हमेशा नहीं है। ये एक स्नेक बाइट का पेशेंट है जो बहुत दिनों से इलाज करा रहा था, एंटीबायोटिक खाता रहा है। तो जब हमारे पास आए तो हम पहले इसको देखें कि इस एक जो है इन्फेक्शन के वजह से साइनस बनी हुई है। व्हाट आवर जॉब सिंपली टू ले इट ओपन। इसको कुछ नहीं करना है, आप ले ओपन करिए, कुछ दिनों के बाद ये घाव भर जाएगा। सो यू नीड टू रियलाइज दैट, इसलिए कि जो सुश्रुत के जो षष्ठी उपक्रम है इसमें छेदन भेदन भी है, लेखन भी है और पत्रदान भी है। सभी तरह का बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैव बीन कंबाइंड इन ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। दैट वाज हिज ब्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट टू सी दिस 60 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट he has classified in 7 steps, 7 you see groups, and that involves both medical and surgical management of wound you see. The local application of medicament, हम बहुत कम को जानकारी है कि जो आयुर्वेद में जो व्रण की चिकित्सा के लिए जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस अवेलेबल है वो एनॉर्मस है और मेनी ऑफ दीज प्रिपरेशंस वी हैव कम टू नो वेरी रिसेंटली। जैसे आप सबको पता है कि जो अग्निदग्ध चिकित्सा में शतधावत घृत की उल्लेख है। डू यू नो दैट व्हाट इज ए शतधावत घृत? व्हेन यू प्रिपेयर ए शतधावत घृत, व्हाट यू डू, यू मेडिकेटेड जो औषधि युक्त घृत होता है उसको हम पानी के साथ फेंटते रहते हैं एंड इट फॉर्म्स ए फोम। तो फोम ड्रेसिंग हैज कम इन एग्जिस्टेंस वेरी रिसेंटली इन मॉडर्न मेडिसिन। क्या होता है कि फोम ड्रेसिंग में करीब करीब 70% जो है वाटर होता है। तो जब कोई घाव शरीर के कोई हिस्सा जल जाता है तो उसमें जलन और दर्द होता है, तो क्या करते हैं, पानी लगाने से कम हो जाता है। Once you apply a foam dressing, it covers the exposed nerve endings and it cool down. तो जब आप उसी तरह से शतधावत घृत की आप उपयोग करते हैं तो जलते हुए मरीज की शांति मिलती है, and that's an immediate. Therefore, these preparations were known to our ancient quite long. In addition to that, there are कषाय डिकॉक्शन जो आप बीटाडिन की तरह यूज करते हैं, वर्ती विग्स, कल्क पेस्ट, medicated paste, सर्पी medicated ghee, medicated oil, rasakriya, the concentrated decoction, and powder, dusting powders. These are the different. In addition to this, there are pichus, vartis, and their special medicated device are being used in Ayurveda for treatment of wound management. So now, see, I'll gradually come to the measures for correction of abnormalities. उन्होंने घाव भर जाने के बाद उन्होंने केवल अपने को सीमित नहीं रखा है, उन्होंने तब तक वुंड की मैनेज किया है जब तक कुछ सामान्य स्किन के बराबर ना हो जाए। उन्होंने इसलिए कृष्ण कर्म है, अवसादन कर्म है, उत्सादन कर्म है, रोम संजन कर्म है। So that was the beauty of Sushrut, that and that if there is a hard scar tissue, to make it soft, if there is a soft, then make it hard, firm. So look at, these are the excellencies and excellent ideas of Sushrut, what he has given. At the end of the wound healing, you could see that there are black spots. These are like this, the scars you see, hyperpigmentation. At the end of the wound healing, you could see there is a hypopigmentation. So he has tried his best to improve these situations also by various medicaments, you see. As you all know that there are drugs which are useful in hypo and hyperpigmentation, Krishna Karma, to correct the hypopigmentation. There are a lot of drugs. I'm not going to in detail. There are drugs which are useful in improving the hair once the hair follicle is being lost, you see. So these are the efforts made by him. So these are another problems of wound healing is a keloid formations. So Sut has described this phenomenon as a Vrana Granthi, and there are medical management for these also. The local application of medications, as I already mentioned it, I am now going to tell you some of the important, you see, aspects which has been carried out, researches which has been carried out in our department to
take care of the wounds in our wound management in general, especially for chronic wounds. Ayurveda has more than 120 drugs used for wound management. They can be categorized as a anti-inflammatory, antimicrobial, debriding agent, and there are bronchoropin. They are promotes healing like a growth factor like drugs, you see. So the anti-inflammatory drugs, there are many more, you see. I have just put few of them, you see. You could see this commonly drugs. Moringa, Sigru is one of them. Jasmine is extensively used. Haridra, Gugulu. So there are a lot of drugs. So I'm not going to detail all these things. लेकिन कुछ क्लिनिकल स्टडीज के साथ मैं इन चीजों को मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। ये स्लाइड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबके लिए भी है। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं प्रोफेसर डनफे, इनको फादर ऑफ वुंड हीलिंग बोली जाती है। और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है, जियोलॉजिस्ट हैं, जो नोबेल लॉरेट है, जिन्होंने वुंड हीलिंग के ऊपर बहुत काम किए हैं। इनका ऑनर ब्रीजफेल इनके नाम है, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है। बोथ आर नो मोर, यू सी। मैं इसलिए स्लाइड्स को यहाँ पर रखा हूँ कि जो आज आप वुंड हीलिंग में मॉडर्न मेडिसिन में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, उनकी जो फाउंडेशन है, उनके फाउंडेशंस को रखने में आयुर्वेद के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सबको जानकारी होगी कि वुंड हीलिंग के लिए फाइब्रोब्लास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसा सेल है जब घाव होता है, घाव होने के बाद वो फाइब्रस मतलब कोलाजन सिंथेसिस करता है, और उस कोलाजन सिंथेसिस के लिए विटामिन सी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एंजाइम के लिए काम करता है। बिना विटामिन सी से फाइब्रोब्लास्ट मैच्योरेशन हो नहीं सकता है और घाव भरने का जो प्रक्रिया है ये अधूरी है। ये आज हम सबको पता है, लेकिन आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस काम के जो फंडामेंटल वर्क है, ये प्रोफेसर के एन उडुपा और प्रोफेसर पीजे देशपांडे जी ने प्रोफेसर डानफे के साथ मिल करके ये काम किए थे, जो कि वुंड हीलिंग के एक फंडामेंटल स्टोन है, फुटस्टेप्स जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आधार करके आज के जो मॉडर्न वुंड हीलिंग के बहुत सारे चीजें आधारित है। तो आज बेहद बहुत सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुआ है, लेकिन रोल ऑफ विटामिन सी which acts as a coenzyme in the maturation of collagen fiber was demonstrated by these scientists, and really we feel proud of it that our own teachers, they help in this understanding process. तो ये कब मत भूलिए कि जो मॉडर्न केवल आयुर्वेद की बात नहीं है, इन आयुर्वेद के लोगों ने मॉडर्न मेडिसिन में भी ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशंस किए हुए हैं। आज इनके रेफरेंसेस आप बॉयड पैथोलॉजी में भी आपको दिखने के लिए मिलेगा इन वुंड हीलिंग के लिए। प्रोफेसर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रोफेसर वीके शुक्ला जी हैं, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुंड हीलिंग वुंड मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट है, फाउंडर प्रेसिडेंट है, और आजकल हमारे यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं, ये रिटायर है। और ये मेरे टीचर प्रोफेसर जीसी प्रसाद जी हैं, इनको भी बहुत ट्रिमेंडस काम रही है वुंड हीलिंग के लिए, स्पेशली फ्रैक्चर मैनेजमेंट और वुंड हीलिंग के लिए। जो इन्होंने ऑनर ब्रिजफेल जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उनके अंडर में इन्होंने काम किए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हम लोग के जानकारी के लिए। मैं इसलिए इस स्लाइड्स को रखा हूं कि आपको थोड़ा सा समझने के लिए, समझाने के लिए, जब चोट लगे तो इमीडिएटली ब्लड वेसल्स इंजरी होती है, ब्लड लीक करता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। क्लॉट फॉर्मेशन होने इसलिए होता है ताकि ब्लीडिंग फर्दर ना हो। फिर क्या होता है कि इस पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होती है, मैक्रोफेजेस आता है, ये सब क्लॉट्स को निकालता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो धीरे धीरे तब तक ये हीलिंग प्रोसेस शुरू नहीं होता है। फाइब्रोब्लास्ट इसमें ग्रो करता है, फाइब्रोब्लास्ट आता है, और ये फाइब्रोब्लास्ट जो है धीरे धीरे इस गैप को जो कोलाजन मतलब से भरता है। ये तो हमको उसको ग्राइनुलोसिन टिश्यू की तरह दिखता है, जो जीवा तल सदृश हम जैसे बता रहे थे, वो धीरे धीरे दिखता है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होता है, एंड फाइनली ये गैप भर जाता है। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखें, एक सेल है,
इस सेल के अंदर डीएनए उसको रिमेम्बर करता है इस प्रोसेस को, और क्या कि आरएनए इसको जो एक प्रोटीन को तैयार करता है, और इस प्रोटीन जो है हम इसको एक फिलामेंट्स की तरह होता है, ये कोलाजन फाइबर जिसको हम देखते हैं, ये सेल यही है। तो इसमें क्या करता है कि ये बेसिकली विटामिन सी इस जगह पर आने के बाद इस सिंथेसिस, ये जो फिलामेंट की जो तरह जो होता है, फाइबर की तरह होती है, इसकी प्रोसेस को ये पूरा करता है। बिना इसके जो है ये वीक हो जाता है, मतलब कि जो जो एक जो गैप है इसको भरने का जो काम है ये नहीं पूरा हो सकती। इस प्रोसेस को समझाने का काम जो है प्रोफेसर उडुपा, प्रोफेसर देशपांडे जी, उनके साथ प्रोफेसर जो फादर ऑफ वुंड हीलिंग प्रोफेसर डनफी, इन लोगों ने मिलकर के डेमोन्स्ट्रेट किए थे। ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और बहुत गर्व की बात है। मैं कुछ क्लिनिकल स्टडीज के बारे में बात करूंगा। ये 1970s में ये प्रोफेसर पाठक जी ने ये स्टडी किया था, कैसिया पैपाया, मतलब पैपिन जो हम यूज करते हैं, पपीता जिसको हम खाते हैं, उसकी लैटेक्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये मार्केट में अवेलेबल है, नैक्रीड के नाम पर अवेलेबल है, लेकिन इसकी क्रेडिट उनको नहीं गई हुई है। ये स्टडी केवल रिसर्च वर्क होकर के रह गया है कि पपीता उन्होंने यूज किए थे, और जस्मीनिया ग्रैंडिफोलियम आप देख रहे हैं, ये उनकी रिसर्च का काम है, और उन्होंने ये स्टडी करके दिखाए थे कि वुंड हीलिंग में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। लेकिन ये क्रेडिट उनके नहीं गया है, किसी दूसरे ने लिया है, क्योंकि वो पेटेंटेड नहीं था, उन्होंने मार्केट में नहीं ले गया है। और ये मार्केट में आज नैक्रीड के नाम पर अवेलेबल है, जो वुंड हीलिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली वुंड डिब्राइडमेंट के लिए, व्रण शोधन के लिए ये काम आती है पपाया। मैं इस बातों पे और मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपको। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे हम लोगों ने व्रण शोधन के लिए क्षार पिचू की उपयोग करते हैं। जो क्षार स्नोई लैटेक्स है, क्षार है, हरिद्रा है, इसको व्रण शोधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इसको अगर आप यूज करेंगे, जो दुष्ट व्रण है तो वो शुद्ध व्रण में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि इस तस्वीर में आप देखते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये पंचवल्कल है, जो जिसके बारे में सभी हम आयुर्वेद के विद्यार्थी जानते हैं, पॉपुलर ट्रीज हैं। तो इन पंचवल्कल आयुर्वेद में एक्सटेंसिवली यूज्ड है वुंड हीलिंग के लिए। हमने इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क किया था। इस पेशेंट को आने के बाद से, एक पेशेंट था जो डे 1 में हम देख रहे थे, उसको डिब्राइड किया। डिब्राइड करने के बाद ये तीसरे दिन पर हम उसकी पंचवल्कल के क्वाथ से ड्रेसिंग करते थे डेली, क्योंकि गरीब था, इसके पास पैसा नहीं था, हमारे पास मजबूरी में और कोई औषधि नहीं था, एंटीबायोटिक खरीद नहीं सकता था, तो इसलिए हम इसको उसी तरह से केवल ड्रेसिंग करते गए पंचवल्कल से। To our surprise, when I saw that gradually the patient has improved, and 29th day, there is a complete healing of wound, and patient requires only cover of the skin or epithelium, for which I have submitted this patient to a plastic surgeon for complete healing. So that was the patient which changed my attitude towards the wound healing, you see. Then I found that this drug is extensively used in many सच पेशेंट्स, जैसे फॉर्नियस गैंग्रीन है, इस तरह से मरीजों में जो है बहुत बेहतरीन ये जो है इंप्रूवमेंट दिखाता है। तो आप इसका आप देख सकते हैं कि घाव बहुत फास्ट हीलिंग करने में मदद करता है, इवन इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। तब मैंने सोचा कि इसकी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। तो हमने इसके लिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है घाव में, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, जो अभी हमने बात कर रहे थे कि जो फाइब्रोब्लास्ट जो सीक्रेट करता है, उसको एस्टिमेशन जो घाव भरने में महत्वपूर्ण है, डीएनए, कोलाजन टाइपिंग, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट, जो नया ब्लड वेसल्स तैयार होती है, इन सब चीजों को हम स्टडी करें इन ड्रग्स के लिए। तो हम लोगों ने पाया कि ये ड्रग जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और ये नोटेड है, ये डिस्क्राइब्ड है। ये काम अखिलेश भारद्वाज जी हमारे एक स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने ये काम किए थे, जो आजकल मध्य प्रदेश में है। और आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोबियल स्टडी में जो अगर आप जो ग्रोथ है बैक्टीरिया का, जब जहां ड्रग यूज करते हैं तो ये पंचवल्कल की क्वाथ यूज करते हैं तो ये बहुत कम हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अगर आप देखें तो ये ब्लड वेसल्स को जो है इंप्रूव करता है, मतलब नया ब्लड वेसल्स तैयारी करने में मदद करता है। ये क्या करता है,
कि जो ग्रोथ फैक्टर, मतलब कि जब घाव क्लीन हो जाता है तो फाइब्रोब्लास्ट से जल्दी जैसे जल्दी इसको बढ़ाने के बाद ये फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। ग्रोथ फैक्टर एक एंजाइम्स जैसे होते हैं जिससे घाव जल्दी भरने में मदद करते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोगों ने इसकी 2 प्रिपरेशंस तैयार किए। क्या है, इसकी पाउडर भी हम यूज करते थे, इसके सॉल्यूशंस भी यूज करते थे वुंड क्लीनिंग के लिए। इसकी पैच बनाया हम लोगों ने कि, और एक स्केफोल्ड बनाया। स्केफोल्ड मतलब एक पोरस मटेरियल है, जैसे गॉज जैसा है, वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जैसे गॉज अपने आप नष्ट नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर ऐसा मटेरियल से बनाया है जो अगर घाव में रखा जाए तो धीरे धीरे अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये पोरस है। और उसमें इस ड्रग की नैनो पार्टिकल्स को हम, एक इलेक्ट्रोस्पिरिंग टेक्निक है, उसमें इसको इम्प्रेग्नेट किया, उसके अंदर हमने फिक्स किया उसको पॉलीमर के साथ। उसमें फायदा क्या है, ये इसकी जो है नैनो पार्टिकल्स है 10 माइक्रोन से भी नीचे है, ये प्लांट्स हैं। और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने में ये ड्रग मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है। इसमें खासियत क्या है कि ये करीब 72 घंटा इस ड्रग्स को रिलीज कर सकता है। तो अगर ये अपने आप डिजॉल्व हो जाता है ग्रेजुअली, इसको नोचना नहीं पड़ता है। तो ऐसे एक मटेरियल को हम लोगों ने डिजाइन किया। और अगर आप देखें कि अगर हम जब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सेल जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये सेल्स हैं, सेल को ग्रो किया है। जब हम पंचवल्कल डालते हैं तो सेल डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर हम जब सेल ग्रोथ होता है बीच में अगर आप इसको तोड़ देते हैं, ये जो सेल ग्रोथ होती है एक लेयर बन जाता है, इस लेयर को अगर हम तोड़ देते हैं, अगर आप देखिए जो जिसमें अगर हम ड्रग्स यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ, जो सेल जल्दी से जल्दी भर जाता है। जिसमें कुछ नहीं देते हैं, हम दवाई नहीं डालते हैं, उसमें ग्रोथ भरने में बहुत टाइम लगता है। सिंपली इसका ये मतलब है कि ये अगर हम पंचवल्कल को यूज करते हैं तो सेल की जो प्रोलिफरेशन है बहुत जल्दी से जल्दी प्रोलिफरेट करता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्टडी हम लोगों ने किया है कि अगर हम जब हम इस सेल्स को पंचवल्कल के क्वाथ में रखते हैं तो ये हर सेल पंचवल्कल को अपने शरीर के अंदर, वो सेल के अंदर ही चला जाता है। अगर हम इसको कलर जब करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये कलर होने की वजह से कैसे किया है, ये ड्रग्स को हम लोगों ने कलरिंग एजेंट के साथ टैग किया है और उस ड्रग को हम लोगों ने सेल मीडिया में छोड़ दिया है। तो धीरे धीरे ये सेल जो है उस पंचबल्कुल को शरीर के अंदर, सेल के अंदर ही चला जाता है। ये हम कलर चेंज से वजह से देख सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम जब पंचबल्कुल को यूज करते हैं वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल की जो साइकिल्स को, सेल लाइफ को जो है इंप्रूव करता है। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लोगों ने किया था। और अगर आप देखें करीब ये उतना ही ड्रग जो है ये करीब 72 घंटा तक कंटिन्यूअसली घाव के ऊपर रिलीज करता है। तो ये स्टडी है जो एनिमल में भी दिखता है कि बहुत जल्दी से जल्दी ये कंट्रोल में, देखिए घाव भरने में 14 दिन लगता है और अगर हम ये ड्रग यूज करते हैं तो 12 दिन में, 11 दिन में भर जाता है। ये बहुत जल्दी घाव भरने में मदद करता है। ये स्ट्रक्चर है, टेक्निक है कैसे हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो है। इसमें खासियत क्या होता है कि ये जो स्केफोल्ड है, जो हम पैच हम लोगों ने बनाया है, ये पोरस होता है। मतलब इसके अंदर हवा आसानी से आ जा सकता है, ऑक्सीजनेशन में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, जो घाव भरने में मदद करता है। ये पेशेंट्स हम लोगों ने ट्रीट किया था। ऐसे अगर आप देखें तो ये बहुत आसानी से इस घाव को क्लीन करता है और जल्दी से जल्दी घाव भरने में मदद करता है, जो सामान्य रूप से बहुत दिनों तक किसी दूसरी जगह पर उसकी इलाज हो रही थी, नहीं भरा था। तो ऐसे स्टडी, ये पेशेंट अभी हम लोगों ने बहुत रिसेंटली, अभी आज का फोटोग्राफ्स है, ये पेशेंट मेरठ के हैं जो करीब कई साल, पिछले 2 साल से वो अपना इलाज करा रहता है। ये सपोरेटिव हाइड्रेटाइटिस की पेशेंट है, पूरे बगल में कई जगह पर हुआ था। इसमें भी हम लोगों ने पंचवल्कल की पैच से देखा है कि ये घाव भरने में, एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली एक किया है, ये आज का फोटोग्राफ्स है, ये 2 महीना टाइम लगा है इस घाव को भरने में, जो पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं अपना इलाज करा रहा था। तो मेरा एक मुख्य बात ये कहना है कि
जो घाव भरने में औषधियों के साथ अपना लाइफस्टाइल, डाइट और आयुर्वेद की जो दोष शमन चिकित्सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एल्डरली पेशेंट में भी जो है आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इट नीड्स अनदर टाइम यू सी टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो घाव ना भरने का कुछ टिप्स है जो कि डिजीज की वजह से नहीं भरता है, इन्फेक्शन के वजह से नहीं भरता है। कुछ ड्रग्स अगर मरीज लेता है तो देखिए उससे भी घाव नहीं भरते हैं। न्यूट्रिशंस की अगर इनसफिशियंसी होती है और टिश्यू नेक्रोसिस, किसी भी कारण से धातु को अगर नष्ट होता है तो घाव नहीं भरेगा। आप इन चीजों को डिड नॉट सी, देयर आर फैक्टर्स व्हिच डोंट अलाउ टू हील इट, सो डिड, हमने इसलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा था डिड नॉट, सो डिड नॉट, डिडंट। सो इससे अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रखने में मदद करता है। मैं इन बातों के साथ ये स्टडी हम लोगों ने और भी कई जगह पर किए थे। ये एक स्टडी हम लोगों ने किया था बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर। हम लोगों ने श्री श्री रविशंकर के जो हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, डॉक्टर भट्ट हमारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ भी काम हम लोगों ने किया था और कई सारे मरीजों में किया था, जिसमें जो रिजल्ट्स है बहुत ही इनकरेजिंग है। ये हमारी पेटेंटेड है अभी, और हम लोगों ने इसकी अभी एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। शायद देखिए कामयाब हो तो इट में बी अवेलेबल इन द मार्केट एज ए ड्रग, एज ए पैच। तो ये सब उसकी कुछ स्टडीज की तस्वीरें हैं जो शो करता है उसकी इफेक्टिवनेस को। समय के अभाव में मैं बहुत डिटेल इसके बारे में, बट नटसेल में क्या होता है कि ये जितने पेशेंट आप लोगों ने देखा है, सभी पेशेंट कहीं ना कहीं महीनों से ट्रीटमेंट हो रहा था और नॉन रेस्पोंडेड था, जो कि सभी के सभी पेशेंट्स हमारे घाव उसके भर गए हैं इन पैच के ट्रीटमेंट के वजह से। कुछ ये हमारी पब्लिकेशंस हैं जो इसके लिए इंटरनेशनल जर्नल्स में, और 2 पेटेंट है। एक टीम है, ये बहुत बड़े से टीम है जो जिनमें से मेरे ज्यादातर स्टूडेंट हैं, और ये अभी आरआईबी के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस काम में। और इनमें से ये टीम इंक्लूड करता है पैथोलॉजी से है, मेटेरियल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है, फार्मेसी से है, डॉक्टर अनुपम के भाई है, ये बड़े भाई हैं, ये भी हमारे बहुत मदद किए हैं और करते रहते हैं समय समय पर। और ये मेरे पहले स्टूडेंट है जो इस काम के शुरू किए थे। ये अभी आजकल हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए हैं। ये अभी तो डॉक्टर शोभा जो हमारे दो हालांकि शल्य से नहीं है, लेकिन ये अगत तंत्र में, लेकिन इनके विशेष रुचि थे, वो मेरे अंडर में पीएचडी किए थे। आजकल अगत तंत्र में जो है प्रोफेसर है यहाँ पर। ये डॉक्टर मिली, ये भी हमारे एक स्टूडेंट है। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर हम एफर्ट करें तो ये एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों जो है आयुर्वेद से ड्रग्स हो सकते हैं जो आयुर्वेद में वुंड हीलिंग के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। हमें बहुत मेटिकुलसली इन चीज़ों को देखना चाहिए। घाव देखने के बाद ये जरूरी नहीं है कि हम गॉजपिस और बिटाडिन लेके रगड़ते रहें, वो शायद सही नहीं है। इसलिए कि ये काम महत्वपूर्ण नहीं होता है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स वुंड को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गंदगी है, घाव है। सब ज्यादातर समय किसी कंपाउंडर या जो सबसे जूनियर है उसको छोड़ के जाके ड्रेसिंग कर दो। शायद ये एटीट्यूड सही नहीं है। हम सबको, हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। ड्रेसिंग करने के लिए एक दवाई नहीं, हर समय पर अलग अलग दवाई चाहिए। उनकी दोष दृष्टि को विचार करना चाहिए और दोषों के आधार पर उनकी चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके न्यूट्रिशन है, उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप, साइकोलॉजिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। अंत में ये विश्वनाथ जी के नया विश्वनाथ धाम की नया लुक है मोदी जी के सौजन्य से। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो, और कोविड पीरियड में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद आप सबके साथ हमेशा बने रहे। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं अपना जो वाचन है यहीं विराम देता हूँ। लंबा हो गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, और आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे इस संभाषा के साथ सब लोग जुड़े रहें और आप सुने।
और मुझे इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स द्वारा जो वुंड मैनेजमेंट इस विषय पर आपने बहुत ही उपयुक्त और विस्तृत जानकारी देकर हमारा ज्ञानवर्धन किया और हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के इस प्रेरणादायी सेशन के बाद हमारे व्यूवर्स और हमारे स्टूडेंट्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वक्त तो चला है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, आपके दर्शन हो गए आज कम से कम इसी बहाने। प्रणाम। अब वक्त तो चला है क्वेश्चन आंसर सेशन का। अगर किसी तरह के सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योर माइक। Anybody would like to ask any question regarding the subject? Yes, please. Yes, please, May I sir. speak? Yes, sir. See, first of all, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude for the power-packed information, excellent presentation with a long experience. So I'm excited with ecstasy. So, sir, I would like to share a very small experience. Actually, I'm not a Shalia man. I'm a Kamar Bhatia man. See, recently I healed a diabetic wound. He was taking treatment for the several months from a foot diabetologist. Diabetologist, yeah. Okay, by a specialist. But it was not healing. He was giving some antibiotic and the aseptic dressing, but the patient himself was doing a dressing. So that was very expensive. And as you said, the lot of money is expensed on wound healing material. So that I helped. And what I did was I used to clean the wound with Triphala Kashaya, and I applied twice Jaloka, and the applied the Jatyadi Taila, and internally I have given a yoga, the mentioned in Sahasra Yoga, Puyara Yoga. And he was a diabetic patient. Simply I have given a common Ayurvedic formula used in Prameha. And it is not a exaggeration, but within 2 weeks, completely healed. Within 2 weeks, it is completely healed. So this is the occasion I want to share with you. I fully agree with you that मैं कई बार इस बात को रियलाइज किया हूँ कि जब हम I do not know to speak in English or Hindi, but anyhow, what I mean to say that initially when I was in my surgical career, initially we are not so convinced with the Ayurvedic treatment. You see, Ayurvedic treatment not only means that treating only some local application of medicaments. No, I disagree, completely disagree. I agree with your principles and philosophy. It involves, you see, that management of entire, you see, human as a totality, his disease conditions, and as far as dosic involvement, you see, that helps tremendously to improve situation. There are many such incidences we can quote, and as you have experienced, probably we need to believe ourselves, we need to strengthen ourselves, you see, and we need to realize what exactly to be done, you see, in these cases. You could save many such patients, you see, with a minimum cost of treatment. Ayurveda can do. I can tell you that Ayurveda has a much more treasure house of wound management in compared to the existing modern knowledge, you see. But unfortunately, we have failed to explore these areas. I have not time to talk about leech application. Another beautiful, you see, area of management of wound, you see, which I have not touched at all, you see, because it takes another lot of time. Therefore, I have not deliberately have not, you see, included in my talk. You see. Thank you, sir, so much. Thank you very much, sir. I fully agree with you, whatever you expressed. Yeah, thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Anybody else would like to ask any question?
Please unmute your mic and ask the question. Hello. Hello. Yes, please. Hello. Yeah. Yes, sir. Yes, please. You can talk. Role of Dhupan in Uranilin. Yeah, Brand Dhupan, yes. I could not, go through these slides. I have a special slide mentioned for Brand Dhupan. Well, there are drugs, not only Brand Dhupan. Sushrut has described there are Dhupan karma in the room of the patient where the patient should be kept, as well as, and the drugs are different for a Brand Dhupan and Dhupan near the wound or at the wound, and Dhupan in the room, I mean, where the patient should stay, Both has an importance, in treatment of wound. But honestly speaking, my personal experience are very limited in Brand Dhupan. We have tried this, and Yes, you have done Dhupan of the wound dressings also. Okay. How you have done it? Hello. How you did it? With Dhupan, we didn't use any sterilized vases or only Dhupan. Only in Dhupan we did it, and we were successful in that. What kind of a wound you have treated? So it was a diabetic wound, and it was amputated below knee, and she was advised for above knee operation, and then she approached us. Great. See, what my suggestion is, or what I feel is this: there are several modalities of treatment for this Dushtbrand. So probably a combination of these things, both systemic medicaments as per Dost Chikitsa, and as my earlier speaker told, that a combination of all these can improve the situation to a great extent. Maybe a simple one procedure, what you have done has improved it, I'm sure, these procedures need to be explored more and more, and they have their immense value in treatment of different kinds of non-healing wounds. I fully agree with you. Kindly throw some light on beds or wound. Okay, pressure sores are another important area of treatment, and there are few aspects of treatment which involves in pressure sores, and these pressure sores are common in elderly patients or those who are bedridden. We treated these patients with a great success with local applications of Jatyadi Ghritam or Jatyadi Tailam, both, and at the same time we also use for this what you call a some systematic drugs, which improve. Especially we used as a Sigru and Gugulu. These drugs are used for treatment of, and it was a very specific drug described by our teachers, and in many cases we treated these patients with these only a very simple formulations, and they have effectively, of course they need some sort of additional nursing care that includes, change of posture to improve their circulations by simply by abhyanga, massaging. So they all helps, to healing of quicker healing of these areas. Thank you very much, sir. Thank you. Next question. Anybody else would like to ask? Any more questions from the viewers? Sir, any Panchavalka presented, you are mentioning that some Panchavalka formulation. Is it ready available in the market now, sir? Right now, we are there are. Now, if you wish, we can provide you, but not in the market. In the sense, because we have a very small machine to produce it, and
the machine produces a patch, you see, of 6 inch by 6 inch. It takes nearly 6 to 7 hours of time. That is, and for our own purpose, we do it. We can provide you a stabilized solution for treatment, and we can also provide you the patches which we use for treatment, you see, but not for commercial use. We are looking forward for a company, you see, now for manufacturing this, and it is on the way, you see. We don't know when we once we reach in some decision, maybe we can help you, you see, in this. But in case if you wish to get it, we'll be happy to provide it. We have few things with us. We have a gel. Now, another important aspect I like to convey to all of you. We are recently using this formulation in veterinary sciences, also in animal. The drug is very extensively used in wound healing and the initial observation in cuffs and in animal. What we found, they are very, very, very beautiful, you see. We prepared a gel of it, you see. The gel can stay quite a long time in the wound, and they help a quicker healing in animal also. So if you wish, we can provide. My contact number is there, you see, and my email is there also. I can provide you for your personal uses for few cases. Thank you, sir. Very helpful. I will contact you. Okay. Next question, please. Yeah, next questions, please. Anybody else would like to ask any question? Okay. Now we can conclude our today's session. Thank you very much, sir, for a very highly knowledgeable session. Now, for a formal vote of thanks, I would like to invite Dr. Paritosh Jha. Thank you so much, ma'am. Good evening, everyone. It is an honor for me to have the opportunity to propose a vote of thanks on 81st webinar of Gyan Ganga Knowledge Voice, a webinar series organized by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. On behalf of organizing committee, I want to express my gratitude to our respected speaker, Professor Manoranjan Sahu sir, for his knowledgeable explanation on the topic, Principle and Practice of Wound Management in Ayurveda. Thank you so much, sir, for enlightening us with your detailed discussion on the topic. I would like to thank wholeheartedly respected Padma Bhushan Vaidya Shri Devendra Trivunaji, President Governing Body of RAV, for his blessing and continuous encouragement. I express my humble thanks to Vaid Manoj Neshri sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, for providing us his immense support and guidance. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Anupam Srivastav sir, Director RAV, for his constant guidance and motivation. I must thank the organizing team of RAV and the volunteers who work behind the scene for their tremendous effort to make this webinar series a great success. I am also thankful to all the respected Gurujanas and participants who are connecting with us continuously throughout the series in spite of their busy schedule. Topic and speaker for the next webinar will be shared with you very soon. At the end, I want to say, follow the COVID-19 guidelines laid by Government of India. Wear the mask at all times. Follow social distancing to avoid COVID-19 infection. With that note, I want to thank you all and have a nice day. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Pranam. So now, namaste, madam. Okay. Have a good day, sir. Thank you. So now I am leaving this webinar now. Okay, sir. Thank Okay. you. Yes. Okay, Sure, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.